Yes, we do. We will start our class with chanting Omkaram. So all of you just join your hands, close your eyes, and we will start chanting Omkaram. Om. 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 Siren children once again. Switch on your cameras, all of you. Ma'am, your voice is not clear. My voice is not clear. It must be clear Ma'am, to it's others. clear. Yes. Renuka, there might be some network issue at your place. Right? Okay. Yes. Switch on your camera, children. Make it fast so that we can start the class. I can see only 2 or 3 have started yet. Make it fast. Very good. Very good. So, how are you all? We are fine, Ma'am, ma'am. we are Fine. Fine. Okay. Very good. We must be fine. Happy and healthy What? also? Yes, Happy and ma'am. healthy? Yes. Yes, ma'am. Very good. So, acha, we have not discussed yet the question paper also, right? Okay, yes, ma'am. ma'am. है ना? तो first of all, we will discuss the question paper and then we will talk about other things. तो पहले Google form को हम discuss करते हैं. तो let me show you the Google form. I am going to share my screen. Rishika, you will let me know whether it is visible or not. I have not started yet. अभी मैं कर रही हूँ share, है ना? Yes, ma'am. हाँ, okay. So first we will discuss about your Google form. Yes, now I am sharing my screen. Is it visible, beta? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now let's start with the questions. See, here it was the first question. When the integers 10,05 minus 5 minus 7 are arranged in descending or ascending. अच्छा बताओ इसमें डिसेंडिंग और असेंडिंग क्यों लिखा है? किसी भी ऑर्डर में अरेंज करने पे ऑर्डर मीन्स कुछ दिक्कत आती क्या? What is asked? Then find out which of the following integer always remain in the middle of the array. Zero. क्यों नहीं Zero. आती? Fine. हाँ, क्यों? Ma'am, because मैम number नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर zero के होता बीच है. में मैम जीरो ही रहता है मैम. नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ये कॉन्सेप्ट गलत है अगर सिस्टम है. नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में मैम जीरो फाइव. ठीक बीच में जीरो नहीं होता है बेटा. अगर यहाँ पे मैं -5 -7 के आगे -3 भी और लगा दूं तब जीरो आंसर नहीं होगा. इसका रीजन दूसरा है. बताओ व्हाट इज द रीजन? मैम Ma'am, मैम -7 and -5 मैम it we count मैम 10 0 मैम 5 is the middle in the one. नो. ma'am, मैम मीडियन. हाँ मिडिल में आएगा लेकिन आंसर प्रॉपरली नहीं दे पा रहे हो. मैम Let अगर me हम check. मैम हम उसका मीडियन निकालेंगे. हाँ मीडियन. यस वेट रेणुका तुम बोलो जरा. मैम अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका मीडियन निकालेंगे तो फिर उस बीच में जीरो ही आएगा. क्यों आएगा जीरो? वही मेरा क्वेश्चन है. जीरो ही आएगा नहीं. मुझे आंसर चाहिए. मुझे चाहिए क्यों आएगा जीरो. यस शुभ्रा, नाउ यू गिव द आंसर. मैम हम उसका मीडियन निकालेंगे. पहले जो सारे नंबर्स हैं उनको ऐड कर देंगे और नहीं, टोटल no. नंबर से. ऐड क्यों करेंगे बेटा? नो नीड टू ऐड. कोई भी मुझे एक प्रॉपर आंसर दो जल्दी. हाँ. मैम फर्स्ट वी अरेंजिंग द नंबर्स. मैम फर्स्ट वी अरेंजिंग द नंबर्स. तो और मैम हाउ मेनी नंबर्स? मैम जीरो. मैम 0 10 -5 -7 मैम 5 नंबर्स आ जाए. मैम वी डिवाइड बाय 5.
नहीं बेटा, क्यों डिवाइड बाय 5 करेंगे? डिवाइड बाय 5 का तो काम ही नहीं है ये। शुभ्रा यू आर राइट, मीडियन बोल रही हो, ठीक है, लेकिन मीडियन निकालने के लिए हम तुरंत से +1 divided by 2. Ma'am, 5 plus 1 divided by 2. Ma'am, 0 is coming on the third term. Yes, very good. Adeeb and Shubhra, they were almost near to the answer. But exact answer which I wanted is, बेटा number of terms उसमें कितनी है? 5. Number of observation 5 है, it means odd. तो odd है, तो बेटा किसी भी order में हम arrange कर ले, either in ascending or descending. जैसे ये मान लो ये number है 5, ये 5 numbers हमने लिए और इसको मैं numbers ले रही हूँ 2, 4, 6, 8, 10. अभी मैंने ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। अब मैं अगर इधर से काउंटिंग करूंगी तो भी थर्ड नंबर पे ये 6 आएगा, इधर से काउंट करूंगी तो भी थर्ड नंबर पे 6 आएगा, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ऑड, दैट इज 5 ऑब्जर्वेशंस आर देयर ना। क्या क्या है? -7, -5, 0 और क्या है? 5 और 10। तो इनको चाहे तुम असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में अरेंज करो, कौन आएगा बीच में? Ma'am, 0. So that was the answer. Okay, let's see the next question. क्योंकि जब असेंडिंग में अरेंज करोगे तो पहले आएगा तुम्हारा अच्छा, सबसे पहले कौन आएगा असेंडिंग में अरेंज करोगे तो इस क्वेश्चन में? ये बताओ मुझे। -7. -7 is the smallest. Yes. Which is the smallest number amongst all these 5? -7. Yes, -7 is the correct answer. Okay. Now come to the next question. Next 3 consecutive numbers in the pattern. ये जो पैटर्न है इसमें नेक्स्ट 3 consecutive numbers तुम्हें लाने हैं। बताओ क्या चल रहा है पैटर्न में? Ma'am, 3 digits minus. Subtracted. 3 subtracted. -7 B. Ma'am, B. Yes, so D. correct answer is D. no, not B. B correct answer नहीं है। -1, -4, -7. -7. हाँ, -1, -4, -7 is the correct answer. So D option is right. Now see the next one. -11 into 7 is not equal to. तो ये इसके भी इक्वल है, -77 आंसर होगा। तो ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है। सिर्फ बचता है ये किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करो बेटा। Pranav. प्रणव, switch off your mic. Yes. So here 11 and 7 both are negative, तो इनका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा बेटा? जो भी आंसर आएगा 77 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? तो ये वाला ऑप्शन जो है इसके इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, -25 into 6 plus 4 is not same as, क्योंकि 6 plus 4 हो जाएगा 10, तो ये तो उसी के जैसा है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दी तो ये भी उसी के जैसा है। इसका आंसर फाइनल निकाल लिया तो ये भी उसी के जैसा है। तो कौन सेम नहीं है? -25 into 6 25 into 6 into 4. -25 into 6 into 4. Yes, so this is the answer. Okay, now see the next one. 73 by 10. Which of the following is an improper? Yes, 2 by 7. अच्छा, 2 by 7 किस टाइप का फ्रैक्शन है? Proper. Because denominator is bigger Because and denominator is numerator is greater than the numerator. Okay, then product of this, so 3 9 Ma'am, B 0.027. 0.027. 0.027. decimal will come B. 3 digit बाद। Zero- तो ये 0.027. Yes, 0.027 is the right answer. Now reciprocal of 3 by 7 by 7 upon 3. Yes. Now the number of trees in different parts of a city are this. Then the mode of these data. Mode निकालना है। कौन सा 33. नंबर? हाँ, 33 नहीं, 34। Because arrange in ascending order. हाँ, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा, राइट? ठीक है। 34 2 बार आया, 33 3 बार आया है। हाँ, yes, तो 33 is the correct option. Then the Frequency is more. range of the data, minimum और maximum value को माइनस करना था, तो what is the answer? Highest minus lowest. 8.
17. 21 is the highest and 4 is the lowest. 4 is the lowest and 21 is the highest. So 20 minus 4 is 8. 17. 21 minus 4 is 70. Yes, ma'am. 17. option 8 is the correct answer. I think it's मैम बहुत raining तेज out. बारिश हो रही है. हाँ, बारिश हो रही है ना तेज, इसलिए आवाज में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है. तो you should listen carefully. When a die is thrown, the probability of 5 by 6 आएगा. हाँ 5 by 6. 5 by 6. 5 by 6. 5 by 6. Yes. ये सिर्फ वही बच्चे कर पाए होंगे जिन्होंने उस दिन स्पेशल क्लास अटेंड की होगी. मैंने एक स्पेशल क्लास तुम लोगों के लिए अरेंज की Yes, थी. ma'am. 1 hour session. हाँ. I wanted to ask this also. Why very less students were there? बहुत कम बच्चों ने अटेंड की थी. ऐसा क्यों? रेणुका, everyone is knowing it's raining. Listen carefully. बाहर की बातों में ध्यान नहीं दो. हाँ. Why very few students were there? जिन्होंने ज्वाइन नहीं की थी, they should let me know the reason why they did not join. Raghav Sharma, you were there in the class, in that class? No, ma'am. Why not? Ma'am, I don't know that. Why not? I have sent the invitation link. How can you not know? Ma'am, it every day, ma'am, 1:30 p.m. we start meeting. मैंने So I. मैसेज भेजा था कि मैं स्पेशल क्लास लूंगी. पहले ही मैसेज भेजा था मैंने व्हाट्सएप पे. भेजा था ना? हाँ, ग्रुप पे भेजा था ना? Yes, फिर ma'am. मैसेज पढ़ना चाहिए. जब मैसेज भेजा है तो मैम क्लास लेंगी ही, ऑब्वियस सी बात है. व्हाट्सएप है किस लिए बेटा? मैसेज देखने के लिए ना. तो क्लास ग्रुप का मैसेज तो बिल्कुल ध्यान से देखा ही करो. राघव तिवारी, तुम Ma'am, I am not a WhatsApp group. Ma'am, I am not in WhatsApp. Yes, ma'am. वेट राघव तिवारी, यू वेट. हाँ राघव शर्मा, क्यों Ma'am, नहीं हो क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे? क्यों नहीं हो? मैम किसी ने मैम डिलीट कर दिया है मैम. Anyway. ऐसे कैसे कोई डिलीट कर सकता है? कोई डिलीट नहीं कर सकता. राघव अपना कैमरा ऑन करो जरा. राघव शर्मा, मेक इट ऑन. हाँ बेटा, तुम्हें कोई डिलीट कैसे कर सकता है ग्रुप से? नो वन कैन डिलीट यू टिल यू आर नॉट रिमूविंग योरसेल्फ. एंड ओनली ग्रुप एडमिन्स, सो टीचर्स विल नॉट डू इट. मैम पहले मैम मम्मी का भी था लेकिन अब मैम मैम पापा का ही बचा है. तो एक नंबर तो है, एक नंबर तो है एडेड. मैम पापा मैम घर पे नहीं रहते. क्यों? इट वाज ऑन संडे एज आई रिमेम्बर. या सैटरडे, सॉरी, इट वाज ऑन सैटरडे व्हिच वाज टीचर्स डे. एम आई राइट चिल्ड्रन? मैम इट इज ऑलवेज ड्यूटी इन हाँ. Yes, ma'am. तो बेटा Yes, फिर ma'am. Yes ma'am. मैम इट इज ऑलवेज ओनली ड्यूटी मैम. बेटा तो अब अपना जो भी नंबर प्रॉपर जो तुम्हारे पास अवेलेबल रहता है, दैट यू शुड रिक्वेस्ट टू ऐड दैट नंबर ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप. आस्क टू योर क्लास टीचर हाउ इट कैन बी एडेड. ओके. हाँ. राघव तिवारी, यू वर देयर इन द क्लास. राघव शर्मा, अपने माइक ऑफ करो. Yes ma'am. हाँ राघव तिवारी, बोलो बेटा, तुम थे क्लास में? Yes ma'am. I was there in the class. वेरी गुड. ओके. राधिका, यू वर देयर इन द क्लास और नॉट? बेटा देखो, आप लोगों को सिंसियर रहना पड़ेगा और अपने क्लास ग्रुप में मैसेज ध्यान से पढ़ा करो और उन चीजों पे ध्यान दिया करो बाकी बातों की बजाय. मैंने देखा है तुम्हारे क्लास के बच्चे यू क्लास व्हाट्सएप ग्रुप पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं छोटी छोटी बातों के लिए. यस मैम, ओके मैम, नो मैम, लिंक इज नॉट देयर मैम, आई हैव नॉट गॉट द लिंक येट, प्लीज सेंड द लिंक. ये सब चीजों के लिए बहुत एक्टिव रहते हो तुम लोग. और जब टीचर्स कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजते हैं तो तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए और उसको अकॉर्डिंगली. यस राघव, आई गॉट योर मैसेज. Yes beta. Okay, let it be. So from next time, be sincere, be attentive. Yes. Now here we have discussed it. Oh, it's raining. चलो ठीक है. MCQ Google form we have discussed now. Now बेटा जो बच्चे थे मुझे उनसे नहीं पूछना है, वो तो मुझे पता ही है कि वो थे. जो नहीं थे उनसे मैं रीजन पूछना चाह रही हूँ कि वो क्यों नहीं थे, है ना.
और अभी भी सिर्फ 22 स्टूडेंट्स है. व्हाट्स द रीजन? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कौन कौन बच्चे नहीं है आज? कौन कौन बच्चे नहीं है क्लास ma'am. में? ऋषिका मुझे बताना बेटा कौन कौन नहीं है आज क्लास में? रुद्र. रुद्र नहीं है. रुद्र वैसे भी बहुत कम रहता है. दिव्यांश ओके. दिव्यांश है मैम. मैम दिव्यांश. Ma'am, I am here. हाँ दिव्यांश है. मुझे दिख रहे हो बेटा. अक्षरा नहीं. Ma'am, pass. ये दो बच्चे नहीं है. जस्ट आस्क देम. परम. हाँ अनमोल. Parth even had not sent me the. Ma'am, the link. Ma'am, Rudra. अदनान. हाँ ओके. अदनान भी नहीं है. पार्थ ने मुझे अपनी आंसर बुक भी नहीं भेजी है. ओके जस्ट wait for a moment. The window is open. Let me close it. तो उसका शीशा टूट जाएगा. Yes, the window was opened. Otherwise क्या हो रहा था कि नहीं तो उसका ग्लास टूट जाता अगर मैं उठ के बंद नहीं करती उसको. It was closed but due to heavy air ना वो पता नहीं कहाँ से खुल गई. बहुत तेज हवा की वजह से. Ma'am, Path said that is a network connection problem because ma'am, he do not send that. हाँ ठीक है. ओके ओके बेटा ठीक है. अभी मैं इसीलिए थोड़ा सा तुमको प्रोबेबिलिटी का एक इन शॉर्ट रिवीजन करवा देती हूँ है ना. प्रोबेबिलिटी को हम एक बार और देख लेते हैं. यस. तो एज आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मतलब बेटा कोई भी इवेंट जो होता है उसके होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है. तो हम क्या करते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी? द फॉर्मूला इज क्या है? फॉर्मूला जिन्होंने अटेंड की थी क्लास बताओ. मैंने लिखवाया था उस दिन. Favorable number of outcome divided by Total number of outcome. total number of outcome. हाँ वेरी गुड. द करेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स डाइस. नंबर ऑफ. इसको निकालते बेटा. टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना. जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी हम यहाँ पर इसमें लेंगे. ये तो सर्टेन कैन हैपन. ये तो सब बच्चे कर सकते हैं. देखो इट वाज अ सनी डे सिंस मॉर्निंग टुडे है ना. सुबह से अच्छी धूप आ रही थी. वी कुड नॉट प्रेडिक्ट कि आज अचानक से क्या होने लग जाएगी, बारिश होने लग जाएगी. वी कुड नॉट प्रेडिक्ट इट. यस. लेकिन देखो अभी इट इज रेनिंग और हम ये नहीं बोल सकते कि थोड़ी देर बाद फिर से वापस ये सनी डे नहीं होगा. इट मे बी देयर. हो सकता है तेज बारिश हो, थोड़ी देर बाद धूप निकल आए. तो ये क्या है? अनसर्टेन है. इट कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. इट मे हैपन, इट मे नॉट हैपन. लेकिन इफ आई से द सन इज राइजिंग फ्रॉम द वेस्ट तो श्योरली यू कैन से मैडम दिस इज नॉट राइट. वी आर 100% श्योर कि ये स्टेटमेंट Impossible. हाँ. So this event is impossible. If I say the sun is rising from the east, so I am 100% sure that this is right. Possible. Possible, yeah, can happen. 100% it is Certain possible. to happen. हाँ, certain to happen. Yes. Possible. तो देखो बेटा यही एक्सरसाइज अभी हम लोग इसमें कर रहे हैं. क्या हुआ? Yes, see the 3.4 exercise. Now I am taking the example. ये तो सब हो गया है. ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं. See the second. Chubra, you read the second question. There are six marbles in a box with numbers from 1 to 6 marked on each of them. First, what is the probability of drawing a marble with number 2? Yes. Now wait, बेटा
क्या है, एक बॉक्स में 6 मार्बल्स है और 6 मार्बल्स में से हर एक मार्बल पे एक नंबर लिखा है और वो नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं, 1 से 6 तक, मतलब हर मार्बल पे एक नंबर एक ही बार लिखा गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विथ नंबर 2 कितनी बार लिखा होगा? यस, 1/6, क्योंकि 1 से 6 तक नंबर 2 जो है वो सिर्फ एक ही मार्बल पे लिखा है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो बॉक्स में से कोई भी मार्बल निकालेंगे तो 2 लिखा हुआ मार्बल कितनी बार आ सकता है बेटा? 1 बार। 1 बार। 1 बार। और कितनी बार में से, टोटल कितनी बार हो सकते हैं? 6 में से, है ना? 6, टोटल 6 बार मार्बल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? 6, और फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/6। 1/6। हाँ, 1/6। हाँ, यस, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। दूसरा क्या है, नंबर ऑफ मार्बल मार्क्ड विथ 5। मार्क्ड विथ 5 वाला भी एक ही मार्बल है एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 6। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1/6। Yes. Now मैं बोलूँ what is the probability to get a marble marked with number 7? 0. मैम इम्पॉसिबल। 0/6. 0/6. 0. 0. Yes, 0/6 means 0, right? हाँ. अब देखो next question. Divyansh, you read the next question. Question 3. Am I? दिव्यांश को बोला है मैंने। दिव्यांश is there? Yes, ma'am. हाँ बेटा, read the question number 3. A coin is flipped to decide which team start the game. What is the probability that your team will start? That your team will start. अच्छा, you are knowing जब भी मैच स्टार्ट होता है तो टॉस होता है ना, आज से भी क्या हो रहा है? आज से स्टार्ट IPL मैच मैम। तो सब बच्चे मजे में अभी तो इंतजार कर रहे होंगे, सब बॉयज तो स्पेशली कर ही रहे होंगे, है ना? यस मैम। Ma'am, मैम आज 7:30 IPL आ गए पे। मैम। आई विल डू नॉट सी द IPL। ओके, देखो अब जब भी कॉइन टॉस करते हैं बेटा, हाउ मेनी फेसेस आर देयर ऑन अ कॉइन? कितनी फेसेस होती है? 2 फेसेस। Head and tail। तो जब भी तुम कॉइन को टॉस करोगे ये 2 रिजल्ट ही मिलेंगे, या तो हेड मिलेगा या मिलेगा टेल, राइट? Tails। ओनली 2 हाँ, तो ये जो रिजल्ट मिलता है इसको ही हम बोलते हैं आउटकम। सो टोटल आउटकम्स आर देयर, हाउ मेनी आउटकम्स? 2, है ना? हेड और टेल 2 आउटकम है। तो कॉइन को जब टॉस किया तो दोनों के आने की पॉसिबिलिटी, हेड कितनी बार लिखा है बेटा? 1 और टेल भी 1 बार। टाइम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द इवेंट हेड आने की 1/2। हाँ, ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही होगी, ठीक है? सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है? द सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में अगर हम कॉइन को उछालने का एक्सपेरिमेंट करते हैं, टॉस करने का, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस कितने हैं बेटा? कॉइन के केस में कितने हैं सैंपल स्पेस? 2 है टोटल नंबर। यस, हाँ, ओके। अब ये तो यही है तुम्हारा फिर से सॉल्यूशन, और कुछ नहीं। सर्टेन टू हैपन। नाउ ये हमने कर ही लिया है मार्बल वाला क्वेश्चन। ओके, सो ऑल वी डिड इन दिस वे, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड टुडे। उस दिन भी हो गया था लेकिन हम फिर भी अभी आज इसको प्रॉपर्ली पूरा हो गया है ये चैप्टर, है ना? तो सारे बच्चे अपना ये कंप्लीट कर लेना। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 4, राइट? चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे हम। सिंपल इक्वेशंस। ये सिंपल इक्वेशन, इसका भी कुछ पार्ट हमने किया था। मैम सेंटेंस से इक्वेशन बनाना और इक्वेशन से सेंटेंस बनाना। हाँ, स्टेटमेंट बनाना, है ना? वो हमने किया था, राइट? ओके, लेट मी ओपन द न्यू टैब।
चैप्टर 4 को भी हम पढ़ेंगे पूरा, तो बुक में भी आप लोग देखते जाओ, यू शुड चेक इट इन योर बुक। हम ले रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। इसका नाम क्या है? सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन मतलब जो इक्वेट करे, राइट? इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? जो इक्वेट करे। जैसे हम वेइंग मशीन को देखते हैं ना, क्या बोल रही शुभ्रा मैम? शुभ्रा का मैसेज नहीं रीड कर पाए। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, यस बेटा, इट इज सेम। चांस एंड प्रोबेबिलिटी वन एंड द सेम थिंग है ना, दो एक ही चीज के दो अलग अलग नाम है। हाँ, साइन इक्वालिटी में, इक्वेशन में क्या होता है? इक्वालिटी का साइन होता है मतलब इक्वल हो। जैसे तराजू के दोनों पलटे क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। एक साइड हो गई लेफ्ट हैंड, दूसरी साइड हो गई राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दैट इज नोन एज इक्वेशन। और हम अभी सिंपल सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे, और हमारी डेली लाइफ में भी कुछ हम जो स्टेटमेंट्स बोलते हैं उनको भी किसके फॉर्म में हम बता सकते हैं? इक्वेशन के फॉर्म में हम उसको फ्रेम कर सकते हैं। सो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। लेट्स सी द फर्स्ट एक्सरसाइज। देखो यहाँ पर है कंप्लीट द गिवन कॉलम ऑफ द टेबल। आप अपनी बुक में ही अभी करते रहना। सी फर्स्ट इक्वेशन है x plus 3 equals to 0, ये इक्वेशन है, एंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा ये जो x, y, z, t जो भी अल्फाबेट्स हम यूज करते हैं, दीज आर नोन एज वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वैल्यू ऑफ दिस कैन बी वेरी। वेरी मीन्स जो चेंज हो सकता है ना, एबल मीन्स हो सकता है, तो जो चेंज हो सकता है। लेकिन अभी यहाँ पे हम सिंगल सिंगल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। देखो x plus 3 equals to क्या होना चाहिए? 0। मतलब x कोई नंबर है जिसमें अगर हम 3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए बेटा? 0 मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मींस कि अगर जो भी वेरिएबल यहाँ पर है वो वैल्यू अगर हम इसमें रख देते हैं इक्वेशन में, तो हमको LHS और RHS जो मिलती है दैट शुड बी इक्वल। ध्यान से सुनना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मींस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच सेटिस्फाई द इक्वेशन। सेटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब क्या होता है? कि उस इक्वेशन में अगर हम उस वेरिएबल की वैल्यू को रख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया है? x equals to 3। पे अटेंशन, पे योर अटेंशन ऑन द कर्सर। कर्सर पे ध्यान दो। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? x की वैल्यू गिवन है 3। तो इफ वी पुट दिस x equals to 3 in this equation, we should get 0। अगर हमको 0 मिलता है, then we will say that this value of x is satisfying the equation। Satisfying the equation, it means this x equals to 3 is the solution of the equation। लेकिन अगर हमको ये वैल्यू पुट करने पे LHS और RHS इक्वल नहीं मिलती है, then we will say कि that this given value is not satisfying the equation। This is not the solution of the equation। अब देखो बेटा फर्स्ट केस में x equals to 3, यहाँ पे x की जगह अगर 3 रखते हो इस इक्वेशन में, तो 3 plus 3 क्या हो जाएगा? 6 which is not equals to 0। Yes ma'am। है ना? 6 is not equals to 0। तो अब तुम यहाँ क्या लिखोगे? Whether the equation is satisfied। Not you will satisfied। write no, not satisfied, because LHS is not equals to RHS। सेम सेकंड केस में x plus 3 equals to 0। अगर तुम x equals to 0 पुट करते हो तो 0 plus 3 is it equals to 0? Not satisfied। No, yes। अब ऐसे ही थर्ड केस में देखो x plus 3, हाँ इसका आंसर नो है बेटा, है ना? तुम्हारे आंसर के लिए मैंने यस किया था। नाउ इन थर्ड केस में क्या है? x plus 3 equals to 0। अब यहाँ पे x equals to -3 रखोगे। देखो यहाँ पर x की जगह -3 रखा, तो what will you get? -3 plus 3। What is the answer? -3 plus 3 is 0। It means 0 Yes। equals to Yes। RHS। Satisfied। So equation is satisfied। समझ में आ गया सबको? Yes ma'am। तो इस तरह से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब इसमें एक इस तरह का देख लो। देखो जैसे ये है 5x is equals to 25। अब अगर तुम x equals to -5 रखते हो, -5 रखोगे तो 5 into -5, what is the answer?
नॉट सेटिस्फाइड। मुझे आंसर बताओ पहले, 5 इंटू -5 कितना होगा? -25 आंसर आएगा। माइनस -25। हाँ माइनस -25। 5 is not equals to 25, so equation is not satisfied here. वही ऊपर वाले में 7th वाले में 5x equals to 25, तो x equals to 5 रखोगे तो 5 5s are 25, तो 25 equals to 25, तो equation is satisfied. 7th वाले में equation satisfied है, 8th में नहीं है. इसी तरह से 9th वाला देखो, m/3 equals to 2, m की जगह पे यहाँ -6 रखो तो -6 divided by 3 कितना होगा बेटा? -2। Is it equals to 2? No. नो मैम। Not satisfied. समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। बस अब इस तरह से तुम क्वेश्चन फर्स्ट कर सकते हो. बस तुम्हें इस तरह से satisfied, not satisfied लिखना है. Can we start next question? यस मैम। सबको समझ में आया? जल्दी बताओ. जिसको आ यस गया मैम। यस मैम। Y लिखो चैट बॉक्स में. चैट बॉक्स में Y लिखो. जिसको समझ में आ गया वही लिखना, जिसको नहीं आया वो मत लिखना. नहीं मैं पूछ लूंगी जिसने भी Y लिखा है उससे. गुड. पलक तुम्हें आ गया? अनिल को कौन एक्सप्लेन कर सकता है? अनिल ध्यान से सुना करो बेटा. यस. Who can explain to अनिल कैसे होगा नहीं होगा? एक कोई भी आंसर कौन एक्सप्लेन करके बता सकता है? अदीप. यस मैम। यस मैम। अदीप बेटा एक्सप्लेन ही मैनी वन ऑफ द पार्ट. ये फर्स्ट पार्ट है, इसको बताओ. एक्सप्लेन करो तुम. यस मैम। जैसे अनिल अपन को दिया है एक तराजू है, उसमें अपन ने 2 सब्जियां डाली है, 2 आलू हैं और अपन ने दूसरी तरफ 1 आलू रखा, तो बराबर है क्या? हाँ। नहीं होगा ना बेटा? नहीं, कॉन्सेप्ट गलत जा रहा है. यहाँ पे आलू की क्वांटिटी मैटर नहीं करती. अगर दोनों का वेट इक्वल होगा, एक बड़ा आलू और 2 छोटे आलू, तब तो इक्वल होंगे ना. वो वेट इक्वल हो सकता है ना. ऐसे नहीं. ये बताओ मैम एक बड़ा आलू और एक छोटा आलू, तो फिर हाँ, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते हो एक तरफ 1 किलो आलू और दूसरी तरफ आधा किलो आलू, तो वो इक्वल होगा क्या? ऐसे करके भी बोल सकते हो, है ना. लेकिन क्वांटिटी से नहीं बता सकते, क्योंकि एक बड़ा आलू 2 छोटे आलू के इक्वल उसका वेट हो सकता है ना. यस मैम। हाँ बोलो, आगे बोलो. हाँ, तो ये अपन ने किया, तो इसका ये सेटिस्फिकेशन नहीं होता, मतलब ये बराबर नहीं आ पा रहा. और अगर हमने एक आलू का वो डाला कि इन दोनों का 3 है और एक का हमने 0 निकालना है, जैसे हमने सोचा, तो हमने उसमें +3 किया, कितना आंसर आएगा? अच्छा चलो ठीक है. अदीप यू ट्राइड वेल. ओके. अनिल तुम्हारे पास में 3 चॉकलेट्स है बेटा. यस मैम। अब उसमें कितनी चॉकलेट्स ऐड करोगे कि तुम्हें आंसर 0 मिल जाए? 0 कब रह जाएंगे तुम्हारे पास? अभी तुम्हारे पास 3 चॉकलेट्स हैं, तुम्हारे पास 0 चॉकलेट्स कब रह जाएंगी? जब तुम तीनों खा लोगे या किसी ने तुमसे तीनों ले ली, है ना. -3। सुनाई आ रहा है अनिल? यस मैम। हाँ, तो वो तभी हो सकता है कि जब ये 3 में हम क्या करें, -3 को ऐड करें. अगर यहाँ पे +3 को ऐड कर दोगे तो 3 + 3 तो 6 हो जाएगा. 0 हो सकता है क्या? नो मैम। हाँ, तो इसलिए नॉट सेटिस्फाइड है ना. वैसे ही थर्ड वाला देखो, यहाँ पे x = -3 रखा, तो जैसे ही यहाँ -3 रखोगे तो -3 + 3 कितना होगा? तुमको मैंने 3 चॉकलेट दी और तुमसे 3 चॉकलेट वापस ले ली. इस हाथ से दी और राइट हैंड से दी, लेफ्ट हैंड से वापस ले ली. कितनी बची मैम? 3 0। तो 3 जो दी वो प्लस में हो गई और 3 जो ली वो माइनस में हो गई. तो +3 -3 क्या हो गया? -0 हो गया ना. तो ऐसे पता करना है कि LHS और RHS अगर इक्वल आ जाती है तो हम बोलते हैं यस, और अगर नहीं आती है तो बोलते हैं नो. ठीक है.
Anil. Ma'am, can I explain third one? Yes. Who? Radhika. हाँ राधिका, अच्छा यस राधिका मैम बोलिए। मैम सेकंड वाला बताएं। हाँ बिल्कुल बताओ, जो तुम्हारी मर्जी है वो वाला बताओ। 7n plus 5 is equal to 19. कहाँ ब्रैकेट है में ये? अरे वहां कहाँ पहुंच गई अभी, उसको तो यही इजी वाला नहीं आ रहा है, तुम क्वेश्चन 2 पे कहाँ पहुंच गए बेटा? क्वेश्चन 1 में से कोई भी पार्ट बताओ। ओके मैम। जल्दी बोलो, टाइम। राधिका, आर यू देयर? Yes, ma'am, she is there. Okay, I hope Anil got it. Anil, have you got it? Yes, ma'am. Okay, now see the next question. Question number 2. Prachi, read the question. Check whether the value given in the bracket is a solution to give equation or not. To the given equation or not, ये हमको चेक करना है। यहाँ पर क्या है बेटा, ब्रैकेट में उस वेरिएबल की वैल्यू लिखी है, तो हमको सॉल्यूशन है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू गिवन है इधर इक्वेशन में उसकी जगह पर रख देंगे, और इक्वेशन में रखने के बाद में सॉल्व करेंगे। अगर हमको LHS और RHS इक्वल मिलती है तो वी विल से दिस इज द सॉल्यूशन, और अगर नहीं मिलती है तो वी विल राइट कि the value given in the bracket is not the solution of given, ठीक है? Not satisfied लिख के काम नहीं चलेगा बेटा, यहाँ पे पूछा सॉल्यूशन है कि नहीं। LHS is not equal to RHS. The first one, n plus 5 equals to 19। अब इसमें पता करना है कि n equal to 1 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो put n equals to 1 क्या करेंगे हम, we will write put n equals to 1 है ना, in the given equation, जहाँ n है वहाँ 1 रखेंगे। तो ये है n की जगह रखा हमने 1, तो 1 plus 5 equals to 19। 1 plus 5 कितना होता है? 6 is not equals to 19। इस तरह से लिखना, फिर लिखना कैसे वो भी समझ लो। You can see here, since LHS is not equals to RHS, thus n equals to 1 is not the solution of of the given equation. इस तरह से आपको करना है। ये जल्दी से लिख लो, ये वाला नोट कर लो, फिर ये क्वेश्चन 2 अब तुम पूरा अपने मन से करोगे। मैम कर दिया। पूरा क्वेश्चन 2 आपको अपने मन से करना है, इसके रिमेनिंग पार्ट भी, और वो टेबल भी बाद में कॉपी में बना लेना होमवर्क नोटबुक में। ये फर्स्ट पार्ट लिख लो जल्दी से, ए वाला n+5, बाकी लोगों को लिखने दो। I hope it must be done now. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, children. So now we will conclude today's class with Shanti part. Is there any question before that? No, ma'am. No, ma'am. किसी को कुछ पूछना है? आज जो पढ़ा सब समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you should complete your homework notebook in proper manner. अब फिर से नया स्टार्ट हो रहा है, तो अभी से अपना पूरा आंसर वो जो है अपनी नोटबुक, होमवर्क नोटबुक अभी से कंप्लीट करना शुरू करो। रोज का रोज करोगे तो समझ में भी आएगा, याद भी रहेगा और प्रैक्टिस भी होगी। और 4 दिन के बाद या एक बार में कॉपी कंप्लीट करने जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, है ना? सो प्रैक्टिस भी, मैथ्स तो प्रैक्टिस का ही गेम है। प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो तुम एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ चिल्ड्रन। We will conclude today's class with Shanti part. Shanti, Shanti, Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourself. Wait, अभी छोड़ना नहीं क्लास जब तक मैं नहीं बोलूं, ठीक है? Take care of yourself, stay happy and healthy. Just
Wait. There is some problem. चलो ठीक है. Take it. Attendance में कुछ problem हो रही है. Just wait. Yes, I have taken it. Now you can leave it. You can leave the class. Thank you, ma'am. Saira, ma'am. Bye, ma'am. Thank you.